بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کہانی پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیں نیلی حویلی کی 19ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ 14ویں تاریخ کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ عنصر کھیتوں میں چھپتا چھپاتا نیلی حویلی کے قریب پہنچا۔ نیلی حویلی کے باہر والی چوکی آج بھی خالی تھی۔ چودھری عمر دراز کا کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتا چلتا وہ عقبی سندھ میں جا پہنچا اور شگاف سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے وہی کیچڑ سے آلودہ تلتلی گھاس تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا رہا، حتیٰ کہ اسی فرش پر آ گیا جہاں وہ پچھلی بار گرا تھا، مگر آج اس کے پاس گرنے کا آپشن نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آج گرا تو پھر کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ عقبی سمت سے ہوتا ہوا وہ حویلی کے مرکزی دروازے کے پاس آ گیا۔ نیلی حویلی میں ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عنصر نے ٹارچ روشن کر کے پیپل کے درخت پر ڈالی اور یکدم آف کر دی۔ ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے درجنوں آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ ان آنکھوں کی چمک سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ درخت پر الٹا لٹکی یہ وہی منحوس چمگادڑیں ہیں جنہوں نے پچھلی بار اس پر حملہ کیا تھا۔ نیلی حویلی کے اندر کسی ذی روح کی حرکات و سکنات کے کوئی آثار نہیں تھے۔ نیلی حویلی کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں، اس بات کا پتہ چلانے کے لیے اسے ایک انوکھی تدبیر سوجھی۔ وہ دبے قدموں تھوڑا سا آگے بڑھا اور ایک قدرے بڑا پتھر ہاتھ میں تھام لیا، تاک کر پیپل کے درخت کا نشانہ باندھا اور اس پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے اسے ایسا لگا جیسے درخت جاگ اٹھا ہے، کیونکہ اس کی شاخیں لہرا رہی تھیں اور فضا خوفناک چیخوں سے تھر تھرا رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں چمگادڑیں چنگھاڑتی ہوئی اڑ رہی تھیں۔ عنصر نے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا لیا۔ چمگادڑیں فضا میں چیختی چلاتی نیلی حویلی کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ وہ ان سے بچتا بچاتا چودھرانی نیک بخت کی قبر کے پاس پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ جارج فرنانڈس نے اپنی ڈائری میں جس خفیہ راستے کا ذکر کیا، اس کا کوئی نہ کوئی سراغ ان قبروں کے نیچے بھی موجود تھے، چونکہ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو انہی سے روشنی پھوٹی تھی اور بدروحیں ان میں داخل ہوئی تھیں۔ اس نے قبر کے پاس جا کر اسے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اسے کنویں کی تہہ میں موجود پتھر کا خیال آیا، جسے دھکیل کر وہ راہداری کے ذریعے خفیہ کمرے میں گیا تھا۔ شاید یہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہاں اسے ایسا کوئی پتھر دکھائی نہ دیا جسے دھکیل کر وہ قبر کھول سکے۔ خون آشام چمگادڑوں کی سیٹی جیسی منحوس چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی اور وہ اپنی کمین گاہوں کا رخ کر رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا سوچ میں گم تھا کہ اس کی محنت رنگ لے آئے۔ چمگادڑوں کی چیخیں سن کر اچانک حویلی کا اندرونی دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اگلا منظر اس کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ چودھری عمر دراز کا ایک ملازم جو باہر حفاظتی چوکی پر مامور تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اس نے خود کلامی کی۔ جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے خود ہی کندھے اچکائے اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیے۔ عنصر چونکہ بیلوں کے اندر چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ بہرحال عنصر سوچ میں پڑ گیا، اگر حویلی آسیب زدہ ہے تو پھر یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ وہ شخص بلا خوف بڑے اطمینان سے کش لگا رہا تھا۔ عنصر اسے بیلوں میں سے دیکھتا رہا اور پھر اچانک بیلے ہٹا کر باہر نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ عنصر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کرختگی سے پوچھا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، عنصر نے آگے بڑھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ جناب کی ڈیوٹی تو باہر ہے، وہ گڑبڑا گیا۔ میں یہاں بیت الخلا جانے کے لیے آیا ہوں، عنصر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بیت الخلا جانے کے لیے؟ یقیناً اس سے محفوظ جگہ پورے گاؤں میں نہیں ہے۔
क्यों मैं दुरुस्त कह रहा हूं ना? उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, उसने दांत किचकिचाते हुए कहा। एक मिनट, एक मिनट ठहरो भाई, अंसर ने दोनों हाथों से उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, फिर मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा। कौन सी बात? उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाया और उसे नीचे फेंक कर मसल दिया। मेरे अब्बा कहाँ हैं? अंसर ने संजीदगी से पूछा। अच्छा, अब्बा से मिलने आए हो? उसने तंजिया कहा। चलो फिर तुम्हें भी तुम्हारे अब्बा के पास छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर वो दौड़ता हुआ आया और अंसर से टकरा गया। अंसर उसके अचानक हमले की ताब ना ला सका और नीचे गिर गया। अभी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि हट्टे कट्टे बदमाश ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। एक लम्हे के लिए अंसर का दिमाग घूम गया। बदमाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने दो खतरनाक दांव उस पर आजमा चुका था और अब अपने दोनों बाजू फैलाकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंसर के करीब पहुंचा, अंसर फुर्ती से घूमा और जोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद कर दिया। मुक्का ठीक निशाने पर बैठा और इसके चेहरे का नक्शा बदल गया। चौधरी उमर दराज के मुलाजिम की नाक से खून फव्वारे की तरह उबलने लगा। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। अंसर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। चौधरी उमर दराज के मुलाजिम ने फव्वारे की तरह बहते खून के दबाव को रोकने के लिए अपनी नाक पकड़ रखी थी। वो संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंसर ने उसे मजीद मोहलत ना दी और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। वो उड़ता हुआ कुछ दूर जा गिरा और दर्द से करहने लगा। इसमें अब उठने की हिम्मत नहीं रही थी। आज पता चला अम्मा मुझे इतना देसी घी क्यों खिलाती थी। अंसर फिर बड़बड़ाया। उसने बदमाश को गिरेबान से पकड़कर उठाया। बताओ मेरे अब्बा कहाँ हैं? मैं उसने मरी मरी आवाज में कहा। वो उसकी बात अधूरी रह गई और गर्दन एक जानिब ठलक गई। वो बेहोश हो चुका था। उठो, अंसर चिल्लाया, आंखें खोलो। उसने बदमाश के गाल थपथपाए, लेकिन उसमें कोई जुनबिश ना हुई। अंसर ने इधर उधर देखा, अपने दोनों बाजू उसकी कमर में फंसाकर उसे उठाया और धकेलता हुआ अंदर ले गया। हवेली की खिड़कियों से चांद की साफ शफाफ चांदनी मचल मचल कर अंदर आ रही थी। उसने फिर भी अपनी टॉर्च रोशन की। हवेली के वसीओ अरीज हॉल में दाएं बाएं दो कमरे थे। हॉल के वस्त से सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। अंसर उसे बाएं जानिब मौजूद कमरे में ले गया। वहां उसे रस्सी मिल गई। अंसर ने उसे रस्सी से कस कर बांध दिया। वो अधमुआ पड़ा था। अंसर उसकी मुश्किल कसने के बाद मुड़ा तो ठिठक गया। दरवाजे पर उसका दूसरा साथी खड़ा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वो उसके खून के कतरों का पीछा करते करते यहां तक आ गया था। तुम? इसे हैरत का शदीद झटका लगा। हाँ मैं, अंसर ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे मेरा नाम अंसर है, तुम नहीं। अपने साथी की हालत देखकर उसकी हैरानी को गुस्से में बदलने में देर ना लगी। मैं समझा बेचों ने आज मेरे बगैर ही नया शिकार कर लिया है। तुमने उसकी ये हालत कर दी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सांड की तरह भागता हुआ आया। अंसर के करीब पहुंचकर उसने मुक्का मारने के लिए दायां हाथ घुमाया, लेकिन अंसर ने झुककर उसका वार नाकाम बना दिया और दोनों हाथ उसकी कमर में गिर्द डालकर उसे फिजा में बुलंद किया और जमीन पर पटक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ उसका फर्श के साथ तसादुम हुआ और वो लेटा लेटा कराहने लगा। अंसर पूरे गांव में कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी था और यही दाव पेच आज उसके काम आ रहे थे। चंद लम्हे तक अंसर उसे देखता रहा, फिर उसे उठाने के लिए उसके ऊपर झुका, मगर उस बार नाकाम हो गया। उसने जोरदार लात अंसर के पेट पर मार डाली और वो उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। दर्द से उसकी चीखें निकल रही थीं। कुछ देर बाद वो दीवार के सहारे उठा। दर्द की वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। कमबख्त ने घाट लगाकर बहुत ही जोरदार लात रसीद की थी। मेरा नाम काला है, काला, उसने मकरूह अंदाज में कहका लगाया और अपना घटना
अंसर के पेट पर मार दिया। उसकी चीख फिर बुलंद हुई और वो दर्द से दोहरा हो गया। तुमने जुर्रत कैसी की मुझे मारने की? मैं आज तक किसी से नहीं हारा। तुम किस खेत की मूली हो? वो हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था। काला आगे बढ़ा और उसे दोनों हाथों से पकड़कर सर से ऊपर उठा लिया। अंसर ने उसका इरादा भांप लिया और वो इसे दीवार पर मारना चाहता था। तुम्हें मारने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा, जिनसे तुमने मुझे जमीन पर पटका। फिर तुम्हारा सर। कल जब लोग पीपल पर तुम्हारी लाश लटकी देखेंगे, तो फिर कोई इधर आने की जुर्रत नहीं करेगा, उसने चीखते हुए कहा। यकीनी मौत सामने देखकर अंसर जोर से फड़फड़ाया। उसके हिलने की वजह से काले की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। नतीजतन उसने अंसर को छोड़ दिया। जमीन पर पांव लगते ही अंसर कमरे से बाहर भागा। काला भी जख्मी सांड की तरह उसके पीछे पीछे चला आया। हॉल में जाकर अंसर पलट कर रुक गया। उसे खड़ा देखकर काला भी रुक गया। अंसर उसके मुतवक्का वार का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। वो भागता हुआ अंसर की तरफ आया, लेकिन वो एक जानिब हट गया। काला काफी भारी भरकम था, इसलिए दौड़ता हुआ उससे कुछ कदम आगे जाकर रुक गया। उसने खसबनाक नजरों से अंसर को घूरा और दोबारा भागता हुआ आया। अंसर फिर उसके रास्ते से किसी बिल फाइटर की तरह पीछे हट गया। वार खाली जाने पर काला फिर तेजी से आगे निकल गया, मगर इस बार तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और मुंह के बल नीचे जा गिरा। अंसर ने मौका गनीमत जाना और उसके सर पर पहुंच गया। काला बमुश्किल उठने की कोशिश कर रहा था कि अंसर ने पूरी कुव्वत से लात उसके पेट पर जड़ दी। अब की बार उसने जोरदार चीख मारी और कमर के बल जा गिरा। काला जमीन पर पड़ा तकलीफ से लोटपोट हो रहा था। अंसर ने उसकी गर्दन अपने बाजू में शिकंजे की तरह दबा ली और जोर लगाना शुरू कर दिया। जूं जूं वो अपनी गिरफ्त सख्त करता गया, तू काला अपने आप को ढीला छोड़ता चला गया, हत्ता कि वो बिल्कुल साकित हो गया। वो बेहोश हो चुका था। अंसर ने उसे छोड़ा तो वो फर्श पर बेसुध गिर पड़ा। अंसर उसके पास ही दराज हो गया। गुत्तम गुत्ता होने से उसकी सांस फूल रही थी। तबीयत बहाल होते ही वो इसे भी घसीट कर उसी कमरे में ले गया जहां उसका पहला साथी बदस्तूर बेहोश पड़ा था। अंसर ने उसे भी रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया और बाहर आ गया। सांड की औलाद मुझे मारने चला था, उसने दोनों हाथ छाटते हुए कहा। इसका मतलब है इस घिनौने खेल के पीछे सचमुच चौधरी उमर दराज का हाथ है, उसने दिल ही दिल में सोचा। काले के एतराफ के बाद यह बात पोशीदा नहीं रही थी कि ये दोनों ही नीली हवेली के अंदर आने वालों को बेतरतीब से मार कर पीपल के दरख्त पर लटकाया करते थे, ताकि लोग ये समझें कि ये बदरूहों का काम है। आज दोनों बदरूहें अधमोए उसके सामने बेहोश पड़ी थी। मौन उसे ख्याल आया, अगर ये लोग गांव वालों को डराया करते थे, तो जिस लड़की की चीखें उमरदीन ने सुनी थी वो कौन थी? घुंघरू वाली चुड़ैल कौन है जिसे उसने देखा था? और फिर कब्र से निकलने वाली पुरस्रार रोशनी? इन बातों के जहन में आते ही वो फिर अचनबे में पड़ गया।